اگر دنیا بھر کا معیشت اگر چلتا ہے تو وہ دنیا کے مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے ہمارا معیشت چلتا ہے۔ اگر اشرافیہ پیسہ کماتے ہیں تو وہ مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے پیسہ کماتے ہیں۔ اگر ان کا کاروبار چلتا ہے تو مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اگر ہمارے ادارے چلتے ہیں تو صرف اس لیے چلتے ہیں کہ ہمارے مزدوروں کے خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے چلتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ بڑا سمپل ہے کہ مزدوروں کو اپنا محنت کی صلہ ملنا چاہیے، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد سے لے کے آج تک ہم مزدوروں کی یہ جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں وہ آئین دیا جس میں مزدوروں کا محنت آرٹیکل 3 میں 1973 کی آئین میں مزدوروں کا محنت اور ان کو محنت کا صلہ ملنا کا ذکر ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں مزدوروں کو سب سے پہلے حق ملا۔ ان کو نہ صرف یونین سازی کا حق ملا، مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایسے اقدامات اٹھائے تاکہ ہم مزدوروں کو ان کا صلہ دلوا سکے، جیسے کہ آپ کا EOBI کا نظام ہے اور بہت سے ایسے کارنامے تھے۔ پھر جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا تو وہ تمام لیبر کے نمائندے جو ضیاء کے آمریت میں گرفتار ہوئے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسے ہی وزیر اعظم بنی تو اپنی پہلی آرڈر یہ تھی کہ وہ تمام جو لیبر کے نمائندے تھے، جو سیاسی قید تھے، ان کو رہا کیا جائے۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی جو مزدوروں کی جدوجہد ہے وہ آگے بڑھائی تھی۔ جب صدر زرداری پہلی دفعہ پاکستان کا صدر بنا تو تب 18ویں ترمیم کے تحت وہ سارے جو جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے اینٹی لیبر پالیسیز تھے، اینٹی لیبر قوانین تھے، اینٹی لیبر آئین کے شک تھے، وہ ختم کیے۔ اور 2008 سے لے کے 2013 تک وفاقی حکومت نے بھی مزدوروں کے فلاح کے لیے جتنے قانون سازی کیے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اسمبلی نے نہیں کیا۔ ساتھ ساتھ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے لیڈ لیا اور تنخواہوں میں تاریخی اضافہ دلوایا، پینشنز میں اضافہ دلوایا، یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد مزدوروں کے حقوق میں اتنا اضافہ ہوا، اور ہم نے کوشش کی کہ ان کو اپنا محنت کا صلہ دلوائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھروائیں گے ہم۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت رہی ہے، اور ہم اس بات کا بھی فخر کرتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں لیبر کو امپاور کرنے کے لیے، مزدوروں کو اپنا محنت کا صلہ دلوانے کے لیے جتنے قانون سازی کیا ہے، کوئی صوبہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے سندھ اسمبلی نے
सिंध मैटरनिटी बेनिफिट्स का एक्ट पास करवाया 2018 में, जो खवातीन के लिए और मजदूरों के लिए कानून साजी थी। हमने सिंध प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्कप्लेस एक्ट 2010 में पास करवाया। हमने सिंध वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स एक्ट 2019 में पास करवाया। हमने सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एक्ट 2015 में पास करवाया। हमने सिंध डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स एक्ट एम्प्लॉयमेंट रिहेबिलिटेशन और वेलफेयर 2014 में पास करवाया। हमने सिंध मिनिमम वेज एक्ट, ताकि हम ये इंश्योर करें कि मजदूरों को अपना मेहनत का सिला मिले, हमने सिंध मिनिमम वेज एक्ट 2015 में पास करवाया। 2018 में सिंध लेबर पॉलिसी, जिसमें चाइल्ड लेबर भी, बॉन्डेड लेबर भी, माइन वर्कर्स भी, वुमेन्स एंड स्पेशल पर्सन्स के लिए भी कानून साजी किया गया। सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2013 में पास किया गया। सिंध पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2015 में पास करवाया गया। द सिंध फैक्ट्रीज एक्ट भी 2015 में पास करवाया गया। द सिंध शॉप्स एंड कॉमर्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट भी 2015 में पास करवाया गया। द सिंध होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट, ताकि वो मजदूर जो घरों में काम कर सके, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनको अपना हक मिले, वो 2018 में पास करवाया गया। फिर द सिंध एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 2014 में पास करवाया गया। द सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2016 में पास करवाया गया। द अप्रेंटिसशिप एक्ट, ताकि मजदूर अपने जो स्किल्स है वो आगे नए नौजवानों को, नए नस्ल को ट्रांसफर कर सके, हमने अप्रेंटिसशिप एक्ट 2017 में पास करवाया। हमने सिंध प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट पास करवाया, और हमने सिंध बॉन्डेड लेबर अबॉलिशमेंट एक्ट 2015 में पास करवाया। हमने साथ साथ सिंध ऑक्यूपेशन एंड जो सेफ्टी एक्ट है, ताकि मजदूरों को काम करते हुए तहफ़्फ़ुज़ मिले, वो एक्ट भी पास करवाया। मगर हमने इस जद्दोजहद को अब आगे लेके चलना है। हमने जो 2000 जो अभी इलेक्शन गुजरा है, उसमें जो हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा में वादे थे कि हमने बेनज़ीर मजदूर कार्ड के जरिए तमाम मजदूरों को उनका हक पहुंचाना है, चाहे वो बड़े बड़े इदारे में काम करे, या वो घर पे काम करे, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इंशाअल्लाह ताला इस बेनज़ीर मजदूर कार्ड की तरफ हम अपना काम करते रहेंगे। हमने इसको सूबाई सतह पे इंट्रोड्यूस भी करवाया है, मगर अगर इसको फाल होना है तो फिर जो वफाकी सतह पर अभी तक लेबर के जो वजारतें हैं डिवॉल्व नहीं हुए, EOBI अभी तक डिवॉल्व नहीं हुआ, तो हम उस तरीके से ये बेनज़ीर मजदूर कार्ड को फाल नहीं कर सकेंगे जब तक वो तमाम वजारतें जो 18वीं तरमीम में वादा किया गया कि वो 2015 तक डिवॉल्व होंगे, लेकिन आज तक डिवॉल्व नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला हम ये जद्दोजहद भी जारी रखेंगे। हम हुकूमत वक्त से भी बात करेंगे कि ख़ास तौर पे तमाम इदारे, तमाम वजारतें जिनको डिवॉल्व होना चाहिए उनको डिवॉल्व आप करें, मगर ख़ास तौर पे जो EOBI का निज़ाम है वो सुबह वो डिवॉल्व किया जाए, ताकि सूबे अपने मजदूरों का ख्याल कर सके, और हम अपने मजदूरों को जो हक दिलवाना चाहते हैं अपना बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है कि उससे पहले हमें EOBI ट्रांसफर किया जाए। हम एक और वादा जो हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा में था वो तनख्वाहों के इजाफा का था, तो उम्मीद है
जल्द हुकूमत सिंध अपना बजट पेश करेगी, हुकूमत बलोचिस्तान अपना बजट पेश और वफाकी हुकूमत भी बजट पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला सिंध और बलोचिस्तान से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो तनख्वाह में इजाफा करेंगे, और साथ साथ हम वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करेंगे कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उनको भी तनख्वाह में इजाफा करना चाहिए। साथ साथ पीआईए, बिल्कुल पीआईए या बाकी जो स्टील मिल के जो निजकारी का सिलसिला चल रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था, है और रहेगा कि हम समझते हैं कि सूबा सिंध में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं वो कामयाब भी हुए हैं, वो फाल भी हुए हैं, और हमने उन तमाम कंपनीज को कामयाब करवाए हैं। तो हम वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो पीआईए के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, वो उनका कुछ शेयर जरूर बेचे और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इस इदारा को हम तरक्की, इस इदारा का तरक्की का हम बंदोबस्त करें, जिसका फायदा पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की मईशत का होगा। और ये एक ऐसा चीज है जो हम कर सकते हैं, जो हमने हर कोल में हमने ये साबित कर दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम वो काम कर सके जो पाकिस्तान के तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमत उससे पहले नाकाम रहे। वो थर से कोयला ना निकाल सके, बिजली नहीं पैदा कर सके। जब हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया तो हमने वहाँ उस मंसूबा को ना सिर्फ कामयाब करवाया, वहाँ के अवाम को रोजगार दिलवाया, और उस इलाका इस वक्त तरक्की याफ्ता अगर है तो इसलिए है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का निज़ाम खोला था। इसी तरीके से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने सड़कें भी बनाए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, हमने पुलें बनाए हैं ये इंडस पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। तो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और जिस वज़ीर खजाना का तारीफ रज़ा रबानी साहब अभी कर रहा था, वो भी हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का निज़ाम को बड़ा पसंद करता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम उनको समझाएं, हम उनको मनाएं इस बात पे कि आप निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़ें, ताकि हम इस इदारा को फाल भी कर सके और हमारा मईशत को पॉजिटिवली हम इस पे कंट्रीब्यूट कर सके। जहां पीआईए का जिक्र हो रहा है, वहाँ स्टील मिल का भी ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और सिंध हुकूमत की खास तौर पे, इसलिए जमीन जो स्टील मिल को दिया गया वो तो सिंध हुकूमत का जमीन था और है, और हम समझते हैं कि सिंध हुकूमत के इनपुट के बगैर इस इदारे के बारे में फैसले नहीं लेने चाहिए। हमारा स्टील मिल के बारे में ये राय है कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ बैठे, और हम समझते हैं कि निजकारी से बेहतर ये है कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे, और ख़ास तौर पे वहाँ के मजदूरों का ख्याल रखेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की मईशत का तरक्की चाहता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि तरक्की का ये नहीं मतलब कि चंद अशराफिया के नुमाइंदे और उनके कारोबार में तरक्की हो। तरक्की का ये मतलब है कि ना सिर्फ अशराफिया मगर आम आदमी तरक्की करे, हमारे मजदूर बहन भाई तरक्की करे, फिर हम उस तरक्की को मानेंगे। जहां तक हमारे तंजीमें हैं,
اس بات پہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے تنظیمیں کو مزید فعال ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو میرے پیپلز لیبر بیورو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے رضا ربانی صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ نہ صرف سندھ کے مگر وفاق بھر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیبر بیوروز ہے، جو ہمارا لیبر کا ونگ ہے، اس کو ری آرگنائز کیا جائے، فعال کیا جائے، انرجائز کیا جائے، تاکہ ہم مزدوروں کا نہ صرف صحیح نمائندگی کر سکے مگر جو ان کے ایشوز ہیں ان کے امیدوں کے مطابق ان کے لیے جد و جہد کر سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی بھٹو، جی مزدور۔ السلام علیکم۔